Okay, guys, good evening. So, today we have with us Vaibhav Kesharwani from Gujarat National Law University and also an All India rank holder of 120 in ALET. Vaibhav is an intern at Madhuban Foundation, an NGO based in Gujarat, and has also interned with LP India. He has done research intensive with IJALR, and the most important thing is that he has made mocks for Get Clat. So today here we have Vaibhav to discuss how to master the QT section, which gives you an edge over other student. So the floor is your, Vaibhav. You can start. Thank you, Aryan, for such a warm welcome. Okay, good evening, everyone, and sorry to take your time after giving mocks. Just a second, I'm presenting my screen. Is my screen visible, Aryan? Yeah. Okay. So should I start? Yeah, sure. Sure. Okay, cool. Okay. Good evening, everyone. So I will discuss about the tips and tricks to approach quantitative technique section. Okay. My approach will be like I will give general tips. Then I will tell my approach during my preparation. And then I will tell you things to avoid. And afterwards we will solve one set of maths. And it will be timed and it will be like a friendly competition. Okay. And then at the end I will discuss doubts. So starting with the tips, the first tip is that we should clear our basics. Okay, like maths में अगर अच्छे marks लाने तो starting जो कुछ important chapters है like percentage, profit and loss, time speed distance ratio, ये सब बहुत अच्छे से clear होना चाहिए. ये हम लोग 10th की बुक से कर सकते हैं जो 10th में बोर्ड्स में बुक्स यूज हुई थी. उससे बस हमें रिविजन करना है, फॉर्मूलाज देखने हैं, that's it, that will work. The second tip is give one section test daily. ओके सो ये सेक्शन टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है. देखो अभी अगर तुम स्टार्ट करोगे यू हैव 20 डेज, तो 20 डेज के एंड तक यू विल गेट 20 सेक्शन टेस्ट एंड वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, मैथ्स की स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो फिर वो तुम लोग के लिए बहुत हेल्प रहेगा. देन लर्न शॉर्टकट्स. ओके, शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट जैसे पेपर में, बिकॉज ये पेपर हम लोग की नॉलेज उतना नहीं टेस्ट कर रहा है जितना हम लोग की स्मार्टनेस टेस्ट कर रहा है. Shortcuts like 1 by 9, 100 by 9 is equal to 11.11 और 100 by 11 is equal to 9.09. इस तरह के शॉर्टकट्स तुम्हें याद रखना, ये परसेंटेज के शॉर्टकट्स हैं. ओके, एंड देन फोकस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो देखो यू विल गेट अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस इन क्लैट एंड उससे तुम्हें अपने मार्क्स 15 मिनट्स में, तो मैं अपने सेक्शन को 15 मिनट्स देता था मैथ्स में, तो you have to score at least 7 to 8 marks to get a nice rank, decent rank. तो फिर accuracy अगर जैसे तुमने 10 questions कर लिए and you lose 5 questions, then तुम्हारा negative भी होगी, तो फिर तुम्हें marks बहुत कम आएंगे. इसलिए जो भी तुम question try करो then ensure that it is right, क्योंकि maths में ये नहीं है कि तुम्हें doubt रहेगा questions में, so वो right हो सकते हैं. ठीक है, maths में accuracy देखो, take your 15 minutes and at least score 7 marks. Okay, and 7 is the lowest. Then try to eliminate the options. ये elimination क्लैट में बहुत काम आता है. ट्रस्ट मी, जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, एक बार तुम अगर उसको देखोगे ना, चारों बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस होंगे कुछ क्वेश्चंस में. तो फिर एक जो ऑप्शन जो एकदम पास है तुम्हारे आंसर के, तुमने कैलकुलेशन की है अपना परसेंटेज, ठीक है, लाइक परसेंटेज तुम्हें कैलकुलेशन मिला 100 by 9. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. तुम्हारे 4 ऑप्शंस है 15.15, 21, 7 एंड 9.09. ठीक है, तो फिर 100 by 11 तुम्हारा क्या आंसर होगा? 9.09, क्योंकि 9 नंबर है. 9 अगर तुम्हारा आगे कैलकुलेशन में, तुम्हें आगे का नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि बाकी तीनों ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम पे हैं. ठीक है, तो फिर ये एलिमिनेशन बहुत काम आएगा. एक बार ट्राई करना, अपने प्रैक्टिस में ट्राई करो, देन तुम्हारे क्लैट में अपने आप वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ओके, सो माय अप्रोच, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 3 sets डेली, दैट इज 1 sectional टेस्ट. ठीक है, तो ये जैसे तुम्हें 3 sets एक दिन करता था, एंड दिस आई यूज्ड टू डू फॉर द लास्ट 1 month. So therefore I practiced 30 into 3 90 questions. तो इस तरह मैंने प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे अपने आप एक्यूरेसी बढ़ गई. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी मैथ्स अच्छी थी स्टार्टिंग से, तो फिर आई ओनली डिड 3 sets. कुछ लोग की अगर थोड़ी वीक है देन वो लोग 3 से ज़्यादा सेट्स कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सेक्शनल टेस्ट करो. ओके,
then give one mock daily. In the last month I also used to give mock daily, and उसका sectional test, उसका जो maths का part होता है वो अलग होता था, वो I did not count it in my sectional test part. ठीक है, वो पार्ट किया, उसको फिर सॉल्व किया, फिर एनालाइज करना. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और मेरे लिए मैथ्स में जैसे ये था, मैं अपना मॉक करता था, देन आई यूज्ड टू डू जीके, देन इंग्लिश, एंड आफ्टरवर्ड्स मैथ्स, बिकॉज मैथ्स जैसे रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यू ऑल नो ना. तो फिर हम लोग जैसे इंग्लिश में बहुत रीडिंग हो गया, उसके बाद लीगल में भी रीडिंग बची हुई है, तो मैथ्स में एकदम सेंटर में डाल देता था, जिससे मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए रीडिंग से. सबकी सबकी अलग तरीका होता है करने का. सो यू कैन डू मैथ्स एट द एंड. जिसका वीक है वो एंड में कर सकते हैं, एंड जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो मिड में डाल सकते हैं, जिससे रीडिंग से ब्रेक मिले. ओके, एंड देन लीव डिफिकल्ट क्वेश्चन विद लेंथी कैलकुलेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी होंगे, क्योंकि सारे जो टेस्ट मेकर्स होते हैं वो लोग स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन डालते हैं मैथ्स के सेक्शन में. लाइक 15 क्वेश्चंस तुम्हें मिले, देन देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी दैट 2 to 3 क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी and they are meant to leave. Okay, then during analysis try to find easier way to solve the questions. Okay, this is also very important. Like तुमने mock दिया या सेक्शन टेस्ट दिया, एंड में तुम एनालिसिस कर रहे हो उस क्वेश्चन की, तुम वो देख रहे हो कि तुमसे नहीं हुआ, या फिर अगर हो भी गया तो ये देखो उसको और फास्ट वे में कैसे कर सकते थे. कोई कैलकुलेशन तुमने बहुत ज़्यादा लेंथी ले गए, या फिर जब तुम रफ में करे तो तुमने जैसे 10th में नहीं करते थे, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करना है. हम लोग को स्टेप मार्किंग तो मिल नहीं रही है, तो वो सब स्टेप्स अवॉइड करो, और मेन तुम कैलकुलेशन में आओ, जल्दी से उसको सॉल्व करो, इजी तरीका निकालो कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस. ये सब सिर्फ एनालिसिस के टाइम होगा. सो ऐसे एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थिंग्स टू अवॉइड. सी आई सेड स्टिक ऑन वन सेट फॉर नॉट स्टिक ऑन वन सेट फॉर मोर देन 7 minutes. लाइक तुम एक सेट कर रहे हो मैथ्स, तुम्हारे पास 3 सेट्स होते हैं, एंड I take like 15 minutes, and you also have 15 minutes to solve math section. ठीक है, तुमने एक सेट किया, 5 minutes. देखो मिनिमम टाइम 5 minutes you can give, because 5 minutes तो नॉर्मल टाइम होता है ये सब एक सेट करने का. तो लेकिन तुमने अगर 7 minutes से ज़्यादा हो रहे, तुम टाइम देखते रहो. ठीक है, टाइम क्वेश्चंस करो, टाइम देखो. अगर तुम्हारे 7 minutes क्रॉस हो गए तो फिर उसको जल्दी से या तो फिनिश करो, अगर खत्म होने वाला नहीं हो पा रहा है, तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है वो सेट, तो उसको स्किप करो, सेकंड सेट पे आओ. उसमें अपना टाइम मत वेस्ट करो, वरना वो किसी और सेट पे या किसी और सेक्शन में बहुत इफेक्ट करेगा मेन क्लास पेपर में. ओके, द सेकंड थिंग टू अवॉइड इज टोटली इग्नोरिंग सेक्शन इफ यू आर नॉट गुड एट इट. सो मैंने बहुत से एस्पिरेंट से बात की है, दे से दैट कि देखो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो रही, देन आई विल स्किप दैट पार्ट एंड ट्राई टू स्कोर मोर मार्क्स इन अदर सेक्शंस. But see, maths is a section that can make or break your rank. That's very true. And अगर तुम maths छोड़ दोगे तो तुम्हारे chances हैं अच्छे NLUs में पहुंचने के बहुत कम है. Okay, so maths is very important. You cannot skip it. You can score less marks तो कुछ minimum time maths section को 2 क्लैट के मॉक में. Okay, then not timing yourself while practicing. देखो अगर तुम टाइम नहीं करोगे अपने आप को, या फिर तुम कैलकुलेटर यूज करोगे लाइक माय 4th पॉइंट, देन तुम्हारा वो बनेगा नहीं कि तुम्हें स्पीड में करना है. तो जब भी तुम सेक्शन टेस्ट सॉल्व करो उसको टाइम करो. लाइक तुमने सॉल्व किया, अब मिनिमम टाइम रखो, 4 minutes रखो, 5 minutes रखो. ट्राई अपने आप से कम्पीट करो कि देखते तुम इतनी जल्दी कर सकते हो या नहीं. तो इस तरह टाइम करोगे अपने आप को, स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी. ये नहीं कि एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो अपनी टाइम करने के चक्कर में. ठीक है, तो टाइम आराम से करो, अपने 5 minutes दे दो एक सेट को प्रैक्टिस के समय, उसको करो और ट्राई करो 5 minutes के अंदर हो. बाहर हो रहा है तो उसको फिर से एनालाइज करो, देखो कि और जल्दी कैसे कर सकते थे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू नॉट इग्नोर द अबव पॉइंट्स. ओके, ठीक है, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल सेशन, सो आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है एवरीवन, और ये फ्रेंडली कंपटीशन होगा. रूल नंबर 1, यू विल बी प्रोवाइडेड 5 minutes फॉर ईच सेट. ठीक है, मैं अभी एक सेट दे रहा हूँ, अगर if we will get time then we will do 2 or 3 sets. Okay, rule number 2, no clarification will be asked in the middle of the 5 minutes round. ये जो सेट है मैंने खुद भी सॉल्व किए हुए हैं 5 मिनट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ये अनसॉल्वेबल या फिर कोई गलत क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये सॉल्व करना. अगर लास्ट में कोई ऑप्शन मैंने गलती से गलत मार्क कर दिया देन वी विल डिस्कस दैट. रूल नंबर 3, पोस्ट द 5 minutes as soon as you set is solved. जैसे ही ये सेट सॉल्व हो जाए, जो 5 तुम्हारे आंसर्स हैं वो तुम अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना. ठीक है, जो फर्स्ट पोस्ट करेगा दैट पर्सन विल बी फर्स्ट. इस तरह कंपटीशन होगा सबके बीच में. रूल नंबर 4, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डोंट यूज कैलकुलेटर, गूगल. ठीक है, ओके.
एंड आई डोंट नो मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, वो शायद गलत हो गया. ऑल द अदर्स गाइस, Just a minute, okay? जस्ट Okay. Yeah, guys. So you are ready? Just write in the chat box. is my screen visible, Aryan? No, now it is not visible. Okay. No, okay, okay. So can I send the questions in the group? Yeah, sure, no issue. Okay. Okay, yeah, that Okay. will be better. Yeah. या एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर स्क्रीन में विजिबल हो जाए तो बेटर है, वरना मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ. ओके, ठीक है, ठीक. Is everything visible here? You can do one thing that Yeah. at a time you can share means zoom it and share one part only. Okay, मतलब that एक will बार not be possible, I think, because rectangular है तो एक बार में तीन ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं. So अगर किसी पर्सन ने तीन कर लिया फिर चौथा क्वेश्चन नहीं देख पाएगा. अच्छा अच्छा, in that case, okay guys, so we are sharing in the group, okay? Everyone please get ready with your pen and paper. And just do one thing also, Vaibhav, share it here also in the screen, Yeah. because it is recording session, okay? Okay, cool. Aryan, I am sending it to you and then you can share it. Okay, sure. Aryan, share it by 4:18. Okay. So just present the screen here also, okay? Yeah, I am. Okay, Aryan, you can share. Then I will start. Okay guys, so you can check the group. The question is there. I am giving you 6 minutes. The first minute will be to organize yourself, download the document, and then the 5 minutes will be to solve the set. Okay, first set के लिए first set solve करना, अभी second set पे मत जाना. Okay. Okay, one thing can you do, just for the first set you can zoom. Yeah. Just do that. Yeah. Is it okay? Yeah, that is fine. Okay. Guys, start. भैया Zoom. Yeah, sure.
Guys, you just have to solve from question 1 to 5, okay? Once you are done with these two questions, tell me to scroll it down. Guys, 1.5 minutes left. Speed up. Okay, you can scroll a little bit. They are typing in the chat box. Okay, it would not be visible to you. Yeah, yeah. Just scroll it down. Okay. Okay. Aryan, just tell me I cannot see the chat Yeah, yeah, box. sure, sure, sure. Yeah, just a little bit more. Uh, More little bit. okay. Just a second. Yeah. Okay, Is perfect. it okay? Yeah, just zoom it. It can be zoomed. Yeah, yeah, yeah. Guys, time up. Has any one of you done? Okay, Rachna is done. Dipanshi is done. Okay, Dipanshi, can you write all the answers? And the rest of you, I am giving 2 minutes more, okay? जिसका जिसका होगी वो अपने चैट बॉक्स में आंसर लिख लो. Aryan, should I scroll it down? There are 5 questions. Yeah, you can. Yeah, because till fourth they have done. Yeah. Okay, they have done 4. Huh? Yeah. Just a second. Okay, so the third one is fifth one. Okay, I have cut the first and second one. Yeah, yeah, yeah. Sure. Just zoom a little bit. Sure. Yeah, perfect.
आज पे कौन क्लास ले रहा है तुम लोग का? कितना से? यार पागल है क्या? 7 बजे मेरा क्लास रहता है। आज हम 5 बजे टीवी में आते हैं, फिर बात करते 30 seconds to go. हैं। क्या? अच्छा आओ तो। Yeah, that is not an issue, no problem. Okay. Just for now, he has changed the number. Okay. Yeah. Okay, time up, guys. Okay, so who all have done? इसका जिसका हो गया वो अपने चैट बॉक्स में आंसर लिख लो, then we will match it. I think most of you already wrote. So the first answer is D. Second is A. Third one is B, and third one was thoda sa lengthy. So I think I would have left that. And fourth one is B. Fifth one is A. किसके किसके पांचों सही हैं? Soumya Shekhawat corrected. Soumya Malhotra corrected all else. Okay, nice, Soumya. Congrats. What about everyone else? You all can unmute yourself. The majority are in 4. Okay. Majority have 4 correct, right? Yeah. Okay, nice. Very good. And कौन किन किन लोगों ने 5 minutes के अंदर solve कर लिया था? जब मैं 2 minutes extra नहीं दिए थे. Most of them have done in the same time only. Okay, nice. Yeah. That's good. So C. Okay, Rashna, good. Dipanshu, all correct. Very good. Richa, nice. Adarsh, very good. And Pallavi, done all. Sanvi, done all. Good. So C. जिसने इसे 5 minutes के अंदर किया था, उसको अपनी स्पीड और तेज करनी है. You all are very good. तुम लोग का सेट सही जा रहा है. उसको 4 minutes के अंदर करना है. जिन लोगों ने 7 minutes का टाइम लिया, that's the maximum time you can take. उसको 6 या 5 minutes के अंदर करने की ट्राई करना. Okay. And that's nice. Everyone was correct. The accuracy सबकी सही थी. That's very good. जिसका नहीं हुआ question, then we will solve it in doubt session. Okay. And अभी second session. Aryan, should we do the second part also? Yeah, guys. So, do you want the second practice set also? Guys, see, so this was just for practice. Like तुम लोगों को कैसे solve करना है वो बताया है. तुम लोग बस अपने आप पे compete करो. तुमने 5 minutes का टाइम लिया, टाइम लगा के रखो जिससे प्रेशर रहेगा तुम्हारे माइंड्स में. तो जब तुम प्रेशर के साथ काम करोगे, देन तुम्हारी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी और स्पीड भी इंप्रूव होगी. Yeah, and he will deal with the question. Don't worry. Okay. Yeah, I will deal it right now. अगर किसी को डाउट है. So 6 to 10th वाले क्वेश्चंस करने हैं नहीं? Okay. So second one, just type in the chat box that do you want the second practice set? Yeah, they want. Okay. Okay, they want. Okay, then guys, I will give you 5 minutes more and मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ. क्वेश्चंस उसमें उसी में रहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ग्रुप में, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा है उसका जो डेटा दिया हुआ है. ओके, I will also share this screen, no problem. Ready everyone? Okay, your 5 minutes start now. Just a second. This is the question and जो सारे questions है वो सब ग्रुप में देख लो. The source of fund and expenditure is the data. Sorry. Aryan, is it visible? Yeah. Okay.
Yeah, Vaibhav, you can also show the question. Okay, just scroll Sorry. it. You can scroll it down. Okay. Okay. Scroll it to the questions. Yeah. Okay. Although they are in the and zoom it. Although they are in that group, but because it is a recording session, so it will be easier for those who watch the session. Yeah. True. Zoom it a little. Is it okay now? Just zoom it. Okay. Guys, I'm giving you 1 minute more. Yeah, those who are done, they can type their answer in the chat box. Okay. Time up, guys. Is everyone done? Okay. I thought this set was easy. They could have managed it in 5 minutes. But I guess it is more hard than the first one. Yeah. Okay, guys. So whichever you have done, it is not compulsory to write all the 5 answers. Even if you have done one or two, you can write them. Okay. So just type it in the chat box That and would be great. yeah, good. Soumya 6C.
7th is D. Dipanshi, 6th C. 6th is correct. It's C. 7th D. 8th C. Okay, guys, I'm telling you my answers. Has everyone written in the chat? Yeah. Okay. So 6th one is C, 7th D, 8th C, 9th C, 10th D. I Others, think Adarsh has done all the 5 correct. yeah, others. ओके गाइस, सो सी हम लोग को सारे क्वेश्चंस करने नहीं थे. अगर किसी ने 4 भी सही किए हैं और एक स्किप कर दिया अपने टाइम बचाने के चक्कर में, देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, कुछ इसमें सॉल्विंग बहुत ज़्यादा होगी. सो even also you have not done all the 5 questions, but you have managed to complete the set in 5 minutes, then it's great. Okay guys, छोड़ दो जिसने इसे सेट नहीं किया अभी. We will discuss it later on. Okay. अब मुझे ये बता दो, किसी के आंसर्स में किसी को कुछ डाउट है? ये टाइम खत्म होने के पहले आंसर नहीं लिखे. आदर्श, you could have written it. I said जैसे ही कंप्लीट हो जाए सेट वैसे ही तुम्हें लिखना है चैट बॉक्स में. Had you done it before time? Oh, that's great. Then you are good to go with maths. Don't worry about that. Nice. What about everyone else? ओके आदर्श, तुमने बहुत स्ट्रिक्ट टाइम अपनी देखी है. नाइस. सो गाइस, सी तुम लोग को बस ये एक डिस्क्रिप्शन था, एग्जांपल था कैसे सेट सॉल्व करना है. ओके, तुम्हें अपना टाइम रखना है, उसके फिर करस्पॉन्ड में सेट सॉल्व करना है. अब ये मुझे बता दो, किसी को कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में? वी विल सॉल्व इट टुगेदर. अगर मेरे आंसर्स में कहीं पर कुछ गलत हो या फिर किसी को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो, उसको सॉल्व कैसे करना है, जस्ट राइट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. Second question in first passage. Just a second, mention. What is the ratio of the students playing football in class 11 to those in class? Okay, this was a trick question. The answer was very simple, right? 32 is to 62. Okay, but I have done that. इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. रेशियोज में ये होते हैं ना, A ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि 32 का इंटू 2 64 is to 62 into 2 124. Because the A option is correct. एक बार Okay, उसको एक Remember what you can do is you can present Yeah. the whiteboard and show them to it. Okay, just a second. Yeah. I will show it here only. Okay. Yeah, no. Just zoom it This a is- little bit. Yeah. So this is the second question. Okay. इसमें देखो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए था A, because what is the ratio of students playing football in class 11 to those in class 10? Class 11 में football was given 32. Okay, 32 is to class 12 class 10th में football number of players playing football is 62. Okay, so देखो ये किसी ऑप्शन में तो है नहीं, then you have to divide it, simplify करो रेशियो को, बट या फिर इस ऑप्शन में सिंप्लीफाई करोगे तब भी कुछ हेल्प नहीं करेगा. Then I think we should multiply it by 2. Okay, then if we will multiply it by 2, then the answer will be 64 is to 124. तो ये ऑप्शन A है, therefore A is correct. समझ में आया सबको? तो जस्ट मेक श्योर कि इस तरह के रेशियोज तुम लोग को ढूंढे रहो. 32:64 मिल रहा है तो ये ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 32 और 62. ओके,
Rashna, Yeah. understood? If you have Okay, doubt in yes. any other question, you Okay. can ask, guys. Just type the question number Um, in the chat box. Pankaj, what were you saying? Yeah, I have done. You have done. Okay, nice. So, Vaishnavi, Pankaj, तुम लोग को We have इसी solved क्वेश्चन the में डाउट था problem. ना? Yes, भैया. The problem was same. Okay, is this solved? Okay, great. Any other question, guys? We have fourth, the Fourth same of which passage, passage? first passage. Same passage, fourth one. Okay, just a second. Okay, is the fourth question visible? Yeah. Okay. So the question is, what is the percentage number of players who played baseball in class 12 compared to those who played baseball in class 7? So it is a very simple percentage question. Class 12 में कितने लोग ने baseball खेला? So the data is given here. It was 13, okay? And we will write 13. Then we will see नीचे जो denominator में जाएगा, that will be number of players who played baseball in class 7. So it is 25. Okay, then it is 13 divided by 25. Percentage निकालने तो 100 करते हैं into 100. So the answer will be 13 divided by 25 into 100. It's 26 into 2. It's 52%. It will be 52. Solve करो एक बार आराम से आ जाएगा. 13 divided by 25, 100 divided by 25 4 हुआ. 13 into 4 52. So the answer will be option A. Okay, भैया. भैया थर्ड का आंसर क्या बताए थे? Third, just a second. Third का answer was B. Right है भैया. Okay. I will take from passage 2 question number Yeah. 7. Passage 2 question 7. Okay, Aryan, I cannot see the chat. अगर कोई और questions हैं तो मुझे बता देना. Yeah, I will sure. not stop sharing the screen. Passage 2 question 7. The scholarship has to be paid out of donation fund, and what is the percentage of donation fund used for this purpose? First, I will have to read the question. Source of fund 35%, 30, 25, 10. Donation is 30%. First, we will calculate the donation, that is 30% of 5 crore, because the total amount received was 5 crore. Okay, we will calculate it here. 30%. Sorry. 30% of 5 crore equal to, I have to solve it. It can be zoomed a little bit, okay? Okay. Yeah. Donation fund used for this purpose. Guys, we do not have to solve all this question, because इसमें हम लोग x लेकर कर सकते हैं. 5 करोड़ को हम लोग को exact value नहीं लेनी है, इससे तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी. So for this we will do 30 divided by 100 into x. फिर इसका टोटल डिवाइड करेंगे 30 divided by 100. फिर टोटल डोनेशन फंड कितना है? सॉरी, एक सेकेंड. स्कॉलरशिप 14%. सो देखो ये देखो, डोनेशन जो पूरा 30% था उसका 14%, उसी का 14% यूज हुआ स्कॉलरशिप पे होने में. ठीक है, 30% ऑफ एक्स ये पूरा डोनेशन फंड है, इसका 14% है ना, या इसका 14% यूज हुआ है, 14% यूज हुआ है फॉर स्कॉलरशिप. अब टोटल डोनेशन फंड कितना है? Total donation fund is 30 upon 100 into
x. ओके, ये टोटल डोनेशन है, ये स्कॉलरशिप है, देन वी विल डिवाइड इट. क्या आंसर आएगा? The question was scholarship has to be paid. Now I'm getting confused. 13/100x. Okay, sorry. Sorry. Scholarship 14% of 5 crore है. The scholarship is 14 divided by 100 into x. This is scholarship. This is donation. ठीक है? तो पूरी scholarship donation fund से use होगी. Then we have to calculate the percent of donation fund used for this purpose. Donation fund का कितना percent scholarship में use हुआ है? For this we will do 14x divided by 100. ये ब्रैकेट में रहेगा. पूरा डिवाइड करेंगे 30x on 100. ऐसे समझ में आ रहा है ना? Because I'm using word, I cannot write it down. Okay, for this we will do 14 upon 30 into 100. इसी को simplify करेंगे, that it will become 14 upon 30 into 100. Sorry, इसमें यहाँ पर Vaibhav, actually they are not understanding. Yeah, I get it. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें मैं टाइप करके नहीं बता पा रहा हूँ. एक सेकंड. So there is a draw option. See, there is a draw option up beside insert. Beside insert. Up. Beside insert in that. Okay. Yeah. I get it. Yeah, true. So we have to see scholarship. ठीक है, स्कॉलरशिप has to be paid out of donation fund. पहले स्कॉलरशिप देखो, टोटल कॉलेज ने यूज किया था सारे पूरे 5 करोड़. तो ये 5 करोड़ रुपीस टोटल यूज हो चुका है. सोर्स ऑफ फंड में भी 5 करोड़ था और ये पूरा एक्सपेंडिचर हो चुका है. 5 करोड़ पूरा एक्सपेंड हो चुका है. Therefore we will take percent of donation fund used for this purpose. So स्कॉलरशिप के लिए we used 14% of 5 करोड़. So first of all ये 5 करोड़ को हम लोग x ले लेंगे. 5 CR is equal to x. Okay, therefore scholarship के लिए लगा 14% of x. ये था स्कॉलरशिप के लिए. ओके, अब डोनेशन के लिए 30% ऑफ x लगा, क्योंकि पूरा 5 करोड़ सोर्स ऑफ फंड था, 30% डोनेशन थी. ओके, therefore 30% of 5 crore is donation. Therefore 30% of 5 crore is equal to x. Therefore 30% of x is donation. ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहे स्कॉलरशिप डोनेशन का कितना परसेंट था. ठीक है, तो क्वेश्चन था स्कॉलरशिप अपॉन डोनेशन इनटू 100. गाइस ये समझ में आ रहा है ना? ये स्कॉलरशिप हो गई तुम्हारी, ये डोनेशन हो गया. 30% ऑफ एक्स डोनेशन है, 14% ऑफ एक्स स्कॉलरशिप है. वी हैव टू कैलकुलेट स्कॉलरशिप अपॉन डोनेशन इनटू 100. दैट इज व्हाट इज स्कॉलरशिप एज पेड. तो स्कॉलरशिप डोनेशन का परसेंट निकालना है. तो स्कॉलरशिप है 14x अपॉन 100. डोनेशन लिखेंगे इज 30x अपॉन 100. अब इसका टोटल परसेंटेज निकालेंगे. ओके, सो फर्स्ट ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया. ये x कैंसिल आउट हो गया. ओके, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गया. सो वी विल गेट 140 डिवाइड बाय 3. ओके, सो व्हेन वी विल डिवाइड इट देन द आंसर विल बी, I will use calculator, you all will not use. Okay, it's 46.66. The answer is C. Okay, बस ये तुम लोग को कैलकुलेट करना है. 140 divided by 3. The answer will be C, option C, 46.66%. So ये क्लियर हुआ? I don't think मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी थी. No, it is clear to all. Okay, it is clear. Cool. Yeah, next question is question number 8 all. Question number 8. Just a second.
Yeah. So this is the eighth one, right? What is the total amount used by the college for payment of salaries? Can you clear me out, please? Okay, so whoever had asked question number 8, is this the same question that you were asking? Yes. Akshit? यस भैया यही वाला था. ठीक है. Okay. Yeah. Okay. Eighth हो गया. Seventh पूछना था लोगों को. If the college was managed out of the fund, ना? Now I have to see the chat box. Okay, प्रतिभा, मैंने I think तुम्हारा वाला क्वेश्चन नहीं बताया. मैंने 8th 7th बता दिया. 8th बता दिया. Pratibha, can you unmute yourself and speak the 7th question, please? Okay, this is the 7th question. Aryan, do I have to explain the 7th one? Yeah, Pratibha has asked for that. Okay, 8-1 is done. Okay, 8-1 was if Okay, it's called. Yeah. 8-1 is done. 7-1 you can explain. Yeah, sure. The college was managed out of the funds received by the government only. Sorry? You can Was continue. anyone saying something? Okay. This is the 7th one. Okay. If the college was managed out of the funds received from the government only, then how much fund from the government was left for the other use? Okay. For this, we will take out what was the total amount of funds given by the government. Okay. So it will be total amount of fund given by the government will be 35%. That is 35% of 5 crore. Okay, it will be 35% of 5 crore. Okay, it will be 35 into 5 is equal to 17.5 lakhs. इसको calculate करोगे, it will be 17.5 lakh. Have I done the correct calculation? कोई बता सकता है? Is it 17.5 or 175 lakhs? Yeah, 1.75 crore. Yeah, so it is 175 lakhs. Okay. Okay, sorry. This pencil tool sucks. Seriously. It is 175 crore. Just a second. 175 lakh. That is 1.75 crore. Okay. So if the college was managed by the funds received by the government only, then how much fund from the government was left for other use? So देखो, कॉलेज का मैनेजमेंट जो कॉलेज का है 22% जो 5 करोड़ का है वो सिर्फ गवर्नमेंट फंड से आ रहा था और गवर्नमेंट फंड कहीं और यूज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. देयरफॉर 22% निकालेंगे हम लोग गवर्नमेंट फंड का, यानी 22% निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का. सो 22% ऑफ 5 करोड़, 22% ऑफ 5 crore, 22% of 5 crore. Okay, so it will be 22 upon into 5 lakhs. That to the 10. It will be 110 lakhs. Okay, 110 lakhs is the amount expended from the by the management. Okay, ये पूरा according to question ये पूरा 110 lakhs गवर्नमेंट के फंड से लिया है. दैट इज 175 लाख से लिया गया है. तो कितना गवर्नमेंट का फंड कितना बचा? 175 minus 110, दैट इज 65 lakhs. द आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, क्या समझ में आया? मैनेजमेंट ने टोटल 22% लिया 5 करोड़ का, गवर्नमेंट ने टोटल दिया कितना? 35%. Therefore 35 minus 22% करेंगे 5 करोड़ का, आंसर आ जाएगा 65 lakhs.
Is it clear? Yeah, it's clear. Okay. और कोई क्वेश्चन है? I don't see any question. Okay, that's it. और कोई और क्वेश्चन तो बताओ. Okay, I think that's it. So see, the motive of this session was to communicate to you the type of question which will come, and second how you should practice the questions. ठीक है, तुमने टाइम में किया, थोड़ा सा प्रेशर होगा तुम लोग के अंदर, बट क्वेश्चन सॉल्व हो गए और बहुत से लोगों की एक्यूरेसी भी आई. So that we have to do. इस तरह प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चन, you will good to go. And that's it from my side. Thank you everyone. Okay, so if you have any specific doubt, you can ask. Otherwise, we will Yeah. end the session. Yeah. Guys, कॉन्ट में अगर कोई भी डाउट हो किसी भी और टॉपिक में, या फिर कोई और टॉपिक यू वांट मी टू कवर, वो सब मैं कर लूंगा. अगर कुछ जनरल डाउट है देन यू कैन आस्क. भैया, या पंकज, can you told the method how we can solve in few seconds, just like percentage in points, decimal? लाइक जो हम लोग, जैसे हम लोग, या आई शुड टेल दे, हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उसमें बता सकता हूँ. लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस मोर. सी देखो, ये शॉर्टकट्स है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस से ही आएंगे. व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर, अपने नॉर्मल क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाओगे, देन वो शॉर्टकट्स तुम्हें खुद विजिबल हो जाएंगे. इससे तो वी वर डूइंग 7 क्वेश्चन, राइट? Just open the Word document. I have. Is it visible? Actually, we are able to see your Google Meet screen. Okay, just a second. I had already opened it. Is it visible now? Yeah. Okay. तो 7 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे. इसमें we have to tell गवर्नमेंट का कितना फंड बचा था. ठीक है, मैनेजमेंट में लिखा हुआ था 22% यूज हुआ, और 5 करोड़ का 22%, यानी बेस दोनों का सेम है. यानी सोर्स ऑफ फंड का बेस 5 करोड़ है, एक्सपेंडिचर का बेस 5 करोड़ है. तो इसमें हम लोगों को इतना पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. मैं टाइप करके बता रहा हूँ, अगर आगे में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको ड्रॉ कर दूंगा. ओके, Yeah, sure. सो गवर्नमेंट का था 35% ऑफ 5 करोड़ का हम लोगों ने एक्स ले लिया. 35% ऑफ एक्स ये गवर्नमेंट का हो गया, माइनस मैनेजमेंट के लिए यूज हुआ था 22%. ओके, एंड 22% ऑफ एक्स. ठीक है, ये आया. अब हम लोग को ये पूरा एक एक करके कैलकुलेट करना नहीं है. वी विल डायरेक्टली डू 35 माइनस 22, दैट इज 8 प्लस 5 13% ऑफ एक्स. अब हम लोग 13% ऑफ एक्स डायरेक्टली निकालेंगे, यानी 13% ऑफ 5 करोड़. 13% ऑफ 5 करोड़ तो इसमें रखो, then 13 डिवाइड बाय 100 into 5 करोड़. ओके, तो इसमें ये जो दो जीरो हैं स्टार्टिंग के, ये इस जीरो से कट गए, देन इट इज 13 into 5 lakhs. ओके, 13 into 5 lakhs इक्वल टू 13 into 5 कितना होता है. और तुम्हें ये भी नहीं देखना कि लैक्स या कुछ ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया ही नहीं, सब लैक्स में आंसर दिया हुआ. 13 into 5 करो, 65 आया. 65 एक ही ऑप्शन में आंसर है. 65 लाख या 65 करोड़ तो दिया नहीं हुआ है, एक ही जगह 65 है, तो दिस विल बी योर आंसर. इसमें तुमने ज्यादा कुछ किया नहीं. उसमें हम लोगों ने 35% का 5 करोड़ का निकाला, 22% निकाला, देन उसको माइनस किया, तो दैट विल टेक टाइम. इसमें हम लोगों ने बस डायरेक्टली ये लिखा, ये हम लोगों ने लिखा, हुआ 13% ऑफ एक्स था 5 करोड़, देन 13 into 5 करो, 65 आया, तो ये 65 आंसर हो गया तुम्हारा.
इस तरह हम लोग बस जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तब हम लोग को ट्रिक्स अपने आप विजिबल हो जाएंगे क्वेश्चंस में। पंकज, डिड यू गेट इट? यस भैया। ओके, तो बस प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसिफिक ट्रिक्स नहीं होंगी तुम्हें कि कुछ नई ट्रिक्स बता दो तुम्हें वो ट्रिक्स याद रहेंगे मॉक के समय, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस अपने एक एक करके, और तुम्हें खुद देखो कि हाँ यार ये भी हो सकते थे, इस तरह तुम जल्दी कर सकते थे क्वेश्चन, तो फिर तुम्हें अपने आप आ जाएगा पेपर के समय स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। ओके, आंसर्स एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है ऑप्शंस देखकर, हमें केवल क्वेश्चन से डायरेक्टली आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, एनीथिंग भैया एल्स? बहुत पहले एक भैया ने बताया था कि मतलब दशमलव को पॉइंट्स में ऐसे कुछ 10 तक मतलब लर्न कर लो, और वही मतलब जब तुम्हें लर्न हो जाए तो उसमें मैथमेटिक मतलब लगाते सॉल्यूशन समय तुम उसको यूज कर सकते हो। हाँ, तो 1/s ये बताया था, आई नो दैट। 1/2 बताया था, 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/3 कितना हुआ ये किसी को आता है? ये हम लोग को डायरेक्टली याद करना है, 33.33। ओके, 1/4 पूछें तो बता दो 25%, ये हम लोग को याद करना है। 1/5 20%, 1/6 कितना हुआ 12.5%। तो ये हम लोग को ऐसे याद हो जाना चाहिए। तो ये बस एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लो अपनी जगह। जैसे मैं तुमसे पूछ लिया 1/8, ओके दिस आई ऑल्सो डोंट नो, सब मुझे भी नहीं है। जैसे 1/9 पूछ लिया, ठीक है, 11.11%। तो ये सब 1/1 से लेकर 1/10 तक या 1/20 तक याद कर लो, तुम्हारे पेपर में बहुत काम आएगा। यस भैया। ओके, आई थिंक ये कहा होगा उन्होंने। 1/4 का परसेंटेज कन्वर्ट करना 25% हो गया, 1/6 का किया 12.5 हो गया, 12.5 हुआ आई डोंट, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, डिवाइड बाय 6, सॉरी 1/6 का 16.66 हुआ। ओके, 1/8 का 12.5 है, ठीक है। इस तरह 1/1 से लेकर 1/20 तक का याद कर लो। तो ये शॉर्टकट तुम यूज करना है तो कर सकते हो। ओके गाइस, एनीथिंग एल्स? ओके। थैंक यू पंकज। हेलो यस आदर्श। भैया, कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं फ्लोरिंग का या फेंसिंग का, मतलब कॉस्ट वाला क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ये कितने में हुआ और ये कितने में हुआ, ये क्वेश्चंस में मतलब जो कैलकुलेशंस आते हैं बहुत लेंदी जाते हैं। हाँ, तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तुम्हें खुद वो सब पे डिपेंड करता है, किसी के लिए वो क्वेश्चन लेंदी है, किसी के लिए नहीं है। ओके, दिस इज अ वेरी रिलेटिव फैक्टर। तो अगर तुम्हें वो क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है, तुम्हें लग रहा है उसमें तुम्हारा टाइम चला जाएगा, लाइक यू विल टेक 3 to 4 minutes टू सॉल्व दैट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन उसको स्किप करो। कोई जरूरत नहीं उस 1 मार्क्स के पीछे भागने की। अगर तुम्हारे लिए वो उस टाइम की जगह तुम उसकी जगह 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। ओके आदर्श? So definitely there will be some difficult question, profit and loss में बहुत लेंदी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, और परसेंटेज में भी हो सकती हैं। then it is relative to you, if you want to leave it. And I know ये बहुत से लोग नहीं कहते कि क्वेश्चंस लीव करो, बट ये जरूरी है अगर तुम्हें स्पीड बढ़ानी है अपनी। ओके आदर्श? ओके, सो वन मोर थिंग, अगर ये ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगे तो सब छोड़ दो। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो जो डिफिकल्ट लगते हैं वो भी तुम्हें धीरे धीरे इजी लगने लगेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए कम हो जाएंगे और इजी क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, देन यू विल स्कोर मोर मार्क्स। तो 7 तुम अपना मिनिमम टारगेट रखो मैथ्स सेक्शन में, एंड उसको 15 तक ले जाओ, क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेसी आराम से अच्छी हो सकती है। अक्षित भैया, मैथ्स के लिए टाइम नहीं निकल पाता, लास्ट में रह जाता है। Just a second, Akshit, for that you have to speed up your legal part और RC, because I think mostly इन्हीं दोनों में ज़्यादा टाइम जाता है। तो सेक्शन में टाइम डिवाइड करके दो, टाइम डिवाइड रखो। एक सेकंड में अपना बता देता हूँ। और जीके आई टुक 5 minutes। ओके, ये मेरा रिलेटिव था, कुछ लोग 10 भी लेते हैं। फॉर इंग्लिश यूज्ड टू टेक 25 to 30 minutes. For maths 15 minutes. Okay, so अगर इंग्लिश में ज़्यादा लेना है तो ले लो, जीके में थोड़ा ज़्यादा लेना है ले लो। तो फर्स्ट आवर में तुम्हारा जीके, इंग्लिश और मैथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, एंड देन सेकेंड आवर स्टार्ट होता है, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट विद लीगल
for legal I used to give 35 minutes, and at the end logical में 25 minutes. Okay. सो अक्षर इट्स लाइक अगर तुम्हें एक सेक्शन तुमने 35 मिनट सोच के रखा है एग्जाम से पहले कि तुम 35 मिनट्स दोगे, तो जैसे ही तुम्हें 35 मिनट्स खत्म हो ना तो उस सेक्शन से उसको हटाओ, वो सेक्शन जितना हो गया छोड़ो उसको, दूसरे सेक्शन पे आ जाओ. इससे तुम्हारे पास हर सेक्शन के लिए थोड़ा स्पेसिफिक टाइम रहेगा, तुम सारे क्वेश्चंस देख पाओगे कि हाँ मैंने ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं एटलीस्ट, ये नहीं कि तुम्हारा क्वेश्चन देखने ही छूट गया. ओके. आदर्श भैया आपने स्ट्रैटेजी बताई कि वही मन यूज कर रहा, बीच में मैथ सॉल्व करना. गुड आदर्श, कीप इट अप. ओके, एनीवन एल्स? Aaron, I think I'm done. Okay, so thanks a lot for your time, and it was really an No interactive and wonderful session. Thank you for inviting me here. Thank you everyone. Okay, guys, thank you. So we will meet at 8. Till then, bye. Okay, bye guys, all the best.